اللہ پاک قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تھوڑا سا اس کا بیس بڑھا، اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ عطا فرمایا. اب چاہیں تو تم شکر کرو، چاہیں تو ناشکری، چاہیں تو شکر کرو اور چاہیں تو ناشکری کرو. تھوڑی سی اور آواز کھولیں، چاہیں تو شکر کرو، چاہیں تو ناشکری کرو. آپ کہیں گے ہم اللہ کا شکر کس بات کا کریں؟ تو آپ دیکھیں یہ محفل پاک جنہوں نے منایا ہے، کن کے یہاں پر پروگرام ہے؟ یہ رئیس بھائی نے یہ پروگرام منایا ہے، تو وہ بھی اس بات کا شکر کریں. میں یہاں پر آپ کی یا کسی کی تعریف کرنے نہیں بیٹھا، بلکہ وہ بھی اس بات کا شکر کریں کہ اللہ پاک نے انہیں یہ توفیق عطا کی کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے. آپ اور میں بھی اس بات کا شکر کریں. دیکھیں راتیں تو سب گزریں گی، راتیں تو بندے کی گزر ہی جانی ہے. رات ان لوگوں کی بھی گزرتی ہے جو فٹ پاتھ پر اپنی رات کو گزارتے ہیں، رات ان کی بھی گزرتی ہے کہ جو فیس بک پر اپنی رات کو گزارتے ہیں، رات ان کی بھی گزرتی ہے کہ جو عیاشیوں کے اڈوں پر اپنی رات کو گزارتے ہیں، رات ان کی بھی گزرتی ہے کہ جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوا کرتی ہیں، رات ان کی بھی گزرتی ہے کہ جن کی زبانوں پر دنیاوی نغمے ہوا کرتے ہیں، لیکن رات ان کی بھی گزرتی ہے کہ جن کی زبانوں پر دنیاوی نغمے تو نہیں ہوتے لیکن محمد رسول اللہ کے ترانے ہوا کرتے ہیں. آپ دیکھیں رات تو اس کی بھی گزر جائے گی جو ساری رات بیٹھ کر کے بےہودہ سیریل دیکھے گا. رات تو اس کی بھی گزر جائے گی کہ جو یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا اور جا کر کے بےہودہ سیریلوں میں ملوث ہوگا، اس میں مبتلا ہوگا دیکھنے میں. اور رات تو اس کی بھی گزر جائے گی کہ جس کا دل بھی محمد رسول اللہ کے ذکر میں ہوگا، جس کی زبان بھی خدا کے ذکر میں ہوگی، جس کا ہر جسم کا حصہ خدا کے ذکر سے لبریز ہوگا. اور پھر یقین مانے جب راتیں محمد رسول اللہ کے ذکر میں گزریں گی تو پھر دیکھیں زندگی پرسکون بن جائے گی. آپ دیکھیں شکر کیا کریں اللہ پاک کا، اس بات کا شکر کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں آنے کی سعادت نصیب کر دی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو جہاں بیٹھیں گے وہاں بیٹھ کر کے شکایتیں کریں گے، جہاں بیٹھیں گے وہاں بیٹھ کر کے شکایتیں کریں گے. کوئی شکایت کرے گا صاحب بڑی دقتیں ہیں زندگی کے اندر، کوئی کہے گا بڑی پریشانیاں ہیں زندگی کے اندر، کوئی کہے گا صبح سے شام تک کی ساری ہسٹری سنا دیں گے. کبھی کسی کے آگے روئیں گے، کبھی کسی کے آگے روئیں گے. امام غزالی فرماتے ہیں نادان انسان ہے تو ان دنیا والوں کے سامنے رو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں او نادان انسان سن تو ذرا، تو دنیا والوں کے سامنے شکایتیں کر رہا ہے. کہتے ہیں اگر تیری زندگی کے مشکلات کو خدا سے بہتر کوئی حل کر سکتا ہے تو جا کر کے سنا. خدا سے بہتر کوئی تیری زندگی کے مشکلات حل کر سکتا ہے تو جا کر کے سنا دے. لیکن آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا رونے کی، جہاں بیٹھیں گے وہی شکایتیں. آپ کہیں گے مولانا ہم شکر کس بات کا کریں؟ تو شکر کیا کریں اللہ کا اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں اور مجھے صحیح سالم بنایا ہے. شکر کیا کریں اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں اور مجھے اس وقت میں بیماری سے محفوظ رکھا ہے. ورنہ غور و فکر کریں، معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو وینٹیلیٹر سے ناپاس کر دیا ہوگا، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی دھڑکنیں، جن کے دل کی دھڑکنیں بہت تیزی سے دھڑک رہی ہوں گی، کتنے ایسے لوگ ہاسپٹل کے اندر بھرتی ہوں گے کہ جو آپریشن کے لیے لے کر کے جا رہے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جن کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہوگا، کتنے ایسے پڑے ہوں گے کہ جو بیماری سے تڑپ رہے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو فٹ پاتھ پر پڑے ہوں گے، کسی کے ہاتھ نہیں ہوں گے، کسی کے پاؤں نہیں ہوں گے، کسی کی آنکھیں نہیں ہوں گی، کسی کے چلنے کے لیے قدم نہیں ہوں گے، کسی کے پاس کان تو ہوں گے لیکن سننے کی قوت نہیں ہوگی، دیکھنے کے لیے آنکھیں تو ہوں گی لیکن سننے کی بصارت موجود نہیں ہوگی. آپ شکر کیا کریں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو مجھے صحیح سالم انسان بنا دیا ہے. شکر کیا کریں خدا کا. آپ کہیں گے مولانا شکر کس بات کا کریں؟ تو لوگوں شکر کیا کریں اس بات کا اللہ نے انسان بنایا، ورنہ تمہاری میری کوئی حیثیت
हैसियत नहीं थी। पढ़े सूरत दहर, अल्लाह कुरान अजीम में फरमाता है, अल्लाह फरमाता है हल अता अलल इंसानी हिनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह फरमाता है ओ नादान इंसान, तू तो कोई काबिल जिक्र शै ही नहीं था जो तुझे जिक्र कर दिया जाए। ये आपका माइक बहुत शानदार बोल रहा है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, आप अपने माइक को थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए। कहा तो कोई ऐसी शय ही नहीं था जिसे जिक्र कर दिया जाए, ऐसी शय नहीं था जो इंसान को जिक्र कर दिया जाए, ऐसी शय ही नहीं था जो तेरे तस्कीरें कर दिए जाए। आप शुक्र किया करें अल्लाह का इस बात पर कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया। शुक्र किया करें इस बात पर। बहुत सारे लोग बैठते हैं होटलों पर, और होटलों पर बैठते हैं चाय में चुस्की लगा करके कहते हैं कि साहब, कहते हैं मतलब हम तो दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे दुनिया से। उनसे कहना एक ही जुमला, कहना तुम आयोगे दुनिया में खाली हाथ, या जो आया होगा वो आया होगा दुनिया में खाली हाथ। हम दुनिया में खाली हाथ नहीं आए थे, ना हम दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। फिर कहें तुम कैसे जाओगे, तो कहना हम दुनिया में आए थे तब भी सीनों में मुस्तफा का इश्क लेकर के आए थे, और दुनिया से जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि मुस्तफा का इश्क सीनों में लेकर के चले जाएंगे। और सबसे यही कहेंगे जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शुक्र किया करें। अब देखें बहुत सारे लोग, आप देखें शुक्र किया करें। आप कहें किस बात का शुक्र करें। मुझे एक टाइटल दिया गया था तकरीर करने का, मुझसे कहा गया था कि तुम्हें वालिदैन के ऊपर तकरीर करनी है। देखें वालिदैन, मैंने बहुत सारी तकरीरें की वालिदैन के ऊपर और उससे असर भी पड़ा, लेकिन मैं मानता हूँ बल्कि आप कुछ इस पर गौर व फिक्र करें। पूछे हजरत अल्लामा गुलाम नबी साहब किबला से, जहां पर ये औलादे वालिदैन की नाफरमानी करती है, सिक्के के दोनों पहलू देखे जाएं, सिर्फ ये ना देखा जाए कि औलाद ही नाफरमानी कर रही है। आप बताएं सही माने में क्या वालिदैन भी बच्चों की सही से परवरिश, क्या वालिदैन भी सही से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं? आप शुक्र किया करें इस बात का, अल्लाह ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। शुक्र किया करें इस बात का भी। आप देखें औलादों की तरबियत किस अंदाज में करते हैं। फिर कहते हैं कि साहब बच्चों ने धक्के मार करके निकाल दिया बूढ़े माँ बाप को। फिर कहते हैं बच्चे वालिदैन की ताज़ीम नहीं करते। माँ बाप की ताज़ीम बहुत बड़ी है, लेकिन इससे पहले आप ये भी तो देखें औलादों को दिया क्या है हमने, औलादों की तरबियत क्या की है। आज देखें औलादों की तरबियत किस तरीके से करते हैं जानते हैं? या तो माँ तरबियत करेगी, तो या तो बच्चों की तरबियत सीरियल देख देख करके कर रहे हैं। बाप आएगा वहीं पर मोबाइल चलाएगा, गाने बजाएगा, बच्चों को दे देगा, ले बेटे ले तू देखते रहे। अब बताएं क्या ये बच्चों की तरबियत है? आप कहेंगे मौलाना बच्चों की तो तरबियत करते हैं, इसका नाम तरबियत नहीं है। बैंक बैलेंस बच्चों के नाम पे करा देना या प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पर करा देना, इसका नाम तरबियत नहीं होता है। आप कहेंगे फिर किसको तरबियत कहते हैं? तो देखें तरबियत इसको कहते हैं कि बच्चा जब छोटा सा हो आप उसको सिखाएं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चा छोटा सा हो आप उसको सिखाएं अल्लाह। बच्चा छोटा सा हो आप उसको सिखाएं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सिखाएं। बच्चा छोटा सा हो आप उसको दरूद पाक पढ़ना सिखाएं। फिर देखें औलाद तुम्हारी होगी, गुलाम मुस्तफा की बन जाएगी। सिखा करके तो देखें, हम भी नहीं सिखाते औलादों को। आप देखें एक मैंने रिवायत पढ़ी, एक अल्लाह के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह के बड़े नेक बंदे, वो हज करने के लिए जा रहे थे, पैदल सफर कर रहे थे, पैदल 7 हज पैदल किए उन्होंने। और 7 हज पैदल करके और फिर जब बाद में गए हज करने के लिए, चलते रहे, चलते पानी चाय बाद में पिला दियो, चलते ले जाओ, इस टाइम मत पिलाओ, बाद में पिला दियो चाय। अभी तो बैठे हैं, इन्हें चाय की जरूरत नहीं, मोहब्बत रसूल के जामों की जरूरत। सुने तवज्जो से मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। आता है ये अल्लाह के नेक बंदे हज करने के लिए गए, पैदल जा रहे थे सफर में, चलते थक गए, और जब थके तो चलते आराम करने लगे। फिर कुछ दूर चले और फिर चलते रास्ता भटक गए। जैसे ही रास्ता भटके 7 दिन हो गए, रास्ता भटकते रास्ता नजर नहीं आ रहा था इन्हें, भूल गए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह अगर मैं रास्ता
भटक सकता हूँ तो तू रास्ते पर भी ला सकता है। दुआ की, फौरन रास्ते पर आ गए। बहुत शदीद प्यास लगी थी, देखा करीब ही एक बस्ती है, सोचा कुआं मौजूद होगा और कुएं के करीब गए। जाकर के प्यास शदीद लगी हुई थी, कुएं के करीब गए। जाकर के प्यास के लिए जैसे ही पानी को तलब करना चाहा तो फिर खामोश हो गए। क्यों? वहां पर कुएं से पानी निकालने के लिए न तो रस्सी का पता था न डोल का पता था। वहीं पर तड़प कर हाथ पर हाथ रख कर के बैठ गए। वहीं पर बैठ गए खामोशी से। आपने देखा करीब में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसी में से एक बच्ची करीब आई, आकर के कहा, और राहे खुदा के मुसाफिर लगता है परेशान हो। कहा हाँ हाँ बेटी परेशान तो हूँ। कहा क्या वजह है? कहा वजह ये है कि 7 दिन से सफर कर रहा था, रास्ता भटक गया, प्यास लगी, कुएं के करीब आया हूँ। लेकिन बेटी प्यास तो शदीद लगी है, लेकिन यहाँ प्यास बुझाने के लिए, पानी निकालने के लिए कोई चीज नहीं है। बच्ची कुएं के करीब आई, जुमला तवज्जो से सुनना हर वालिदैन। बच्ची कुएं के करीब आई, आकर के बच्ची ने अपने मुंह के अंदर से थूक निकाला, अपने मुंह के अंदर से थूक निकाला और निकाल करके कुएं के अंदर डाल दिया। आता है जैसे ही थूक बच्ची ने कुएं के अंदर डाला था, कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह। पानी को पिया इस अल्लाह के नेक बंदे ने, और पानी पी करके वुजू किया और वुजू करके नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर उस बच्ची को करीब बुलाया और बुला करके कहा, मेरी बेटी बता तो जरा कौन सा वजीफा पढ़ती है जिस वजीफे की वजह से आज इस कुएं का पानी ऊपर आ गया। के नेक बंदे ने करीब बुलाया, बुला करके पेशानी को चूमा और कहा, मेरी बेटी बता तो जरा कौन सा वजीफा पढ़ती है। बच्ची ने कहा ओ राहे खुदा के मुजाहिद, मैं कोई वजीफा नहीं पढ़ती हूँ, अभी तो कुरान हजीब की भी तिलावत कर रही हूँ। उम्र शरीफ तकरीबन 6 या 7 साल की थी बच्ची की। फिर करीब बुला करके इस नेक बुजुर्ग ने कहा बेटी बता तो जरा, फिर तेरे थूक के अंदर इतनी ताकतें कैसे आ गई जो कुएं का पानी ऊपर आ गया। बच्ची तड़प करके पलटी और कहा, और राहे खुदा के मुजाहिद सुनो तो जरा, तुम क्या समझते हो ये किसी थूक का कमाल है? कहा सुनो, बात यह है जब तक रात को मैं सोती नहीं हूँ, जब तक मेरी माँ मुस्तफा करीम की बारगाह पे 300 मरतबा दरूद पाक नहीं पढ़वा लेती है। कहा बात यह है ये किसी थूक का कमाल नहीं है, अगर कमाल है तो मुस्तफा पर दरूद पाक पढ़ने का कमाल है। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ये किसी धूप का कमाल नहीं है, अगर कमाल है तो मुस्तफा पर दरूद पाक पढ़ने का कमाल है। आता है जब वालिदैन नेक होते हैं तब औलाद नेक बनती है। अगर कोई बाप बंबई के होटल में बैठकर भी गुनाह करेगा उसका असर उसकी औलाद पर पड़ जाएगा। कोई माँ कहीं पर बैठकर भी झूठ बोलेगी उसका असर उसकी औलाद पर पड़ जाएगा। आप पहले की तारीखें पढ़ें बुजुर्गों की और देखें आज भी उन घरों के माहौल, जिन घरों के अंदर औरतें नमाज पढ़ती हैं, उन घरों के अंदर जब जिन घरों में औरतें नमाज पढ़ती हैं छोटे छोटे बच्चे भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन बताएं तो जरा, जब बाप नमाज नहीं पढ़ता, जिस बाप के हाथ के अंदर शराब की बोतलें हो, जिस बाप के हाथ में ताश के पत्ते हो, बताएं आप क्या समझते हैं कि उसकी औलाद वक्त के बलिए कामिल बन जाएगी? जो बाप मस्जिद के गेट तक न पहुंच सकता हो, जिस बाप को खुद को गुस्ल और वुजू के तरीके मालूम ना हो, बाप के खुद के नमाज याद ना हो, तो बताएं औलादों को कैसे याद होंगी? आप तारीखें पढ़े पहले की। आज की माए तो सीरियल देख देख करके औलादों की तरबियत करती है, आज का बाप तो औलादों की तरबियत सीरियल देख देख करके करता है। या तो हराम माल औलाद के जिस्म में पहुंचाते हैं। साहिब आज तो पता नहीं कि हराम है या हलाल है, आ जाए कहीं से आ जाए, हर किसी को पैसे की भूख, हर किसी को पैसे की तड़प, जिसे देखो चाहे जायज है नाजायज है हराम है, कुछ पता नहीं किस तरीके से कमाना है। रिस्क हलाल खिलाए, कैसे खिलाए? हुजूर फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जो बंदा दुनिया में अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएगा, कयामत में अल्लाह उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। गरीब नवाज संजर के जिस इलाके में संजर में रहते थे, आपके बाप भी आलिम थे, माँ भी आलिमा।
जिस रात हजरत गरीब नवाज की विलादत हुई, तवज्जो है, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, जिस रात हजरत गरीब नवाज की विलादत हुई, और सिर्फ गरीब नवाज ही नहीं बल्कि जिस बस्ती के अंदर हुजूर गरीब नवाज रहा करते थे, उस बस्ती के जितने भी लोग थे, नमाज पंजिगाना तो बड़ी बात है, किसी की नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती। नमाज तहज्जुद भी आप तारीखें पढ़ करके देखें, नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती। आप पढ़े तारीख, जिस रात हजरत गरीब नवाज की विलादत हुई, उस रात क्या हुआ, उस रात क्या हुआ, उस रात ये हुआ कि सारी की सारी बस्ती जब नमाज तहज्जुद के लिए उठती, लोग उठते तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, तो देखते न तहज्जुद की नमाज पढ़ते, लेकिन उस रात क्या हुआ, लोगों ने देखा कि जब तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे, लोगों ने देखा कि आज आसमान पर तारीकी नहीं है, अंधेरा नहीं है, बल्कि हर तरफ नूर ही नजर आ रहा है। लोग परेशान हो गए, भाई आज तक नाजिम भाई तहज्जुद नहीं छूटी। लोगों ने कहा आज तक तहज्जुद नहीं छूटी, लेकिन आज तहज्जुद की नमाज कैसे छूट गई? फिर किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया, कहा बात यह है ये सुबह सादिक नहीं हुई है, कहा लगता है आज रात अल्लाह की रहमतों का खास नुज़ूल हो रहा है, अल्लाह की रहमतों का खास नुज़ूल हो रहा है। सबके सब बस्ती का चक्कर लगाने लगे, चारों तरफ चलते रहे तो लोगों ने देखा बड़ी ताज्जुब भरी निगाहों से, और देख करके रश्क करने लगे कि हजरत गरीब नवाज के वालिद मोहतरम की छत से लेकर और आसमान तक नूर ही नूर नजर आ रहा था। और जब सुबह का वक्त हुआ, सबके सब करीब गए और जाकर के पूछा रात क्या मामला था, तब किसी ने बताया नादानो सुनो, इस दुनिया के अंदर मुस्तफा का नाइब तशरीफ लेकर के आया है। बाप नेक होता है, मां नेक होती है, तब औलाद नेक बनती है। आप देखें, आप बुजुर्गों की तारीख पढ़े तो आपको पता चलेगा, पहले की माँ होती थी, आटा गूंथती कुरान पढ़ती, रोटी पकाती कुरान पढ़ती, बच्चे को दूध पिलाती कुरान पढ़ती। फिर क्या होता, जो उनकी गोदों में औलाद पलती थी, वो औलाद अगरचे औलाद बाप की होती थी, गुलाम मुस्तफा की बन जाया करती। और कोई ये ना समझे, ये ना समझे कोई भी इंसान, कोई ये ना समझे कि साहब बाप गुनाह करता रहे, वहाँ गुलाम नबी साहब बाप गुनाह करता रहे, माँ गुनाह करती रहे और औलाद नेक बन जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बबूल के दरख्त में सेब का फल निकल के आ जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम सोचो साहिब कि बच्चा बचपन में बिगड़ गया, बड़े होकर के मौलाना से तावीज ला करके डाल देंगे तो औलाद सुधर जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुदरत का कानून है, ऐसा नहीं होता है कि बबूल के दरख्त में कोई तावीज लटका दे तो सेब निकल करके आ जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आम के दरख्त से तरबूज निकल करके आया, बताएं कभी नहीं निकला, क्योंकि कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा बीज वैसी फसल, जैसा बाप वैसी औलाद, जैसी माँ वैसी बेटी, कुदरत का कानून है। जब बाप नेक होता है तब माँ नेक बनती है। पहले देखे माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा भी कुरान पढ़ता था, बाप कुरान पढ़ता था, बेटा भी कुरान पढ़ता था। और जानते हो कुरान क्या है? ये कुरान तो वही है। आप देखें जब यही कुरान पैगंबर आज़म पर गारे हिरा में नाज़िल हुआ तो बड़े तारीख, बड़े बुखारी, सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर ने कुरान अजीम को किसे सुनाया? मक्का के किसी चौधरी को नहीं सुनाया, मक्का के किसी सूरमा को नहीं सुनाया, बल्कि पैगंबर आज़म अपने घर तशरीफ लेकर के आए और ला करके सबसे पहले कुरान हम सबकी माँ हजरत खदीजा को सुनाया। आका जानते थे, आप कहेंगे क्यों सुनाया? इसलिए कि मुस्तफा मालिक को मुख्तार है। मुस्तफा जानते थे कि आज मैं कुरान अपनी बीवी खदीजा को सुनाऊंगा, खदीजा कुरान मेरी बेटी फातिमा को सुनाएगी और फातिमा कुरान मेरे नवासे हसन और हुसैन को सुनाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग कुरान को मिटाने की बात करेंगे, जब लोग कुरान के मुखालिफ बनेंगे, जब लोग कुरान पर अंगुष्ठ नुमाई करेंगे, उस वक्त में तेरा बेटा हुसैन नेज़े की नोक पर भी कुरान सुना देगा। आप देखें, पढ़े तारीख
ہے اور جانتے قرآن کیا ہے؟ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تب اولاد نیک بنتی ہے۔ پڑھیں تاریخ کبھی پڑھ کر کے دیکھیں، یہ قرآن تو وہی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، چلے تھے کہاں؟ بہن کے گھر چلے تھے کہاں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تلوار لے کر کے۔ کسی نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بانی اسلام کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ کہا اچھا، تو کہا سنو، بانی اسلام کے سر کو تن سے بعد میں جدا کرنا، ہم نے سنا ہے کہ تمہاری بہن بھی ایمان لے کر کے آ گئی۔ کہا اتنا سنا تو عمر غصے میں لال پیلے ہو گئے اور چل دیے فاروق اعظم بہن کی جانب، بہن کے گھر کی طرف چلے۔ اور جب چل کر کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ اندر سے قرآن عظیم پڑھنے کی آواز آ رہی، قرآن پڑھنے کی آواز۔ یہ قرآن وہی ہے کہ جو فاروق اعظم کو جس نے بدل دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا بھی مانگی تھی، لیکن یہاں دیکھیں فاروق اعظم آئے، بہن قرآن پڑھ رہی تھی قرآن، اور جیسے کہ بہن کے قرآن کو سنا، دستک بھی دروازے پر، بہن نے ڈر کے قرآن کو چھپا دیا اور ایک کونے میں بہنوئی بھی چھپ گئے۔ بہن کے کمرے کے اندر آئے فاروق اعظم، آ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ جسم چہرے سے اور چہرے کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، آپ کے خون نکلتا رہا۔ بہن کھڑی ہوئی اور بہن کھڑی ہو کر کے کہا عمر سن، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی۔ عمر نے اتنا سنا تو کہا یہ طاقت کہاں سے آ گئی جو بہن آج تک بھائی کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتی تھی، جو بہن آج تک بھائی کے سامنے بول نہیں سکتی تھی، اس بہن کو اتنی طاقتیں کہاں سے آئی؟ کہا بہن بتا تو ذرا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا قرآن عظیم پڑھ رہی تھی۔ کہا لا کر کے دکھا۔ کہا ایسے نہیں دکھاؤں گی۔ کہا پھر؟ کہا سنو، اگر قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن کو چھونا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے تو پہلے غسل کر کے آؤ۔ ادھر فاروق اعظم غسل کر رہے تھے، ادھر بہن سر کو سجدے میں رکھ کر کے دعائیں مانگ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی یا اللہ جسم کی گندگی کو دھونا یہ پانی کا کام ہے اور دل کی گندگی کو دھونا میرے بھائی کی تیرا کام ہے۔ آتا ہے فاروق اعظم نے جب قرآن کو پڑھا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہا یہ وہ قرآن ہے، ہم نے اس قرآن کو اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ لوگ اس سے مشقت میں پڑ جائے۔ اتنا سنا چل دیے قدم مصطفیٰ پہ اور فاروق اعظم مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر کے سارے زمانے سے یہی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ آپ پڑھیں تو تاریخ کتنی محنتوں سے دین مستقر آپ تک پہنچا ہے۔ نہ تو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی پرورش کی فکر ہے، ہمیں تو ہر وقت مطلب ادھر سے ادھر کوئی رہنا ہے، کسی کی غیبت میں رہنا ہے، کسی کی چغل خوری میں رہنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ اور جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے کچھ کردار دیکھیے مذہب اسلام کے اندر وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پوچھیں ان علماء سے، پوچھیں علامہ غلفام صاحب قبلہ سے، پوچھیں سب سے پہلی مذہب اسلام کے اندر اگر کسی کی قربانی پیش کی گئی تھی تو حضرت سمیہ کی پیش کی گئی تھی۔ ایک خاتون ہی تھی وہ جس کی قربانی مذہب اسلام پر سب سے پہلے پیش کی گئی۔ جانتے کفار کتنا ظلم کرتے حضرت سمیہ پر اتنا ظلم کرتے مکہ کے کفار، ابو جہل اور دیگر کفار مشرکین اتنا ظلم کرتے، کوڑے برساتے حضرت سمیہ پر، آپ کے جسم کے اندر میخیں ٹھوک دی جاتی، آپ کو دیواروں سے لگا کر کے تب ظلم کیا جاتا، کبھی کوڑے برسائے جاتے، کبھی مکہ کے چوراہے پر گھسیٹا جاتا، کبھی آپ کے جسم کے اوپر گرم گرم پتھر رکھے جاتے، کبھی حضرت سمیہ کو مکہ کی پتھریلی وادیوں میں گھسیٹا جاتا اور پھر کفار گرم گرم پتھر رکھ کے حضرت سمیہ کے سینے پر ہنستے اور کہتے او سمیہ ابھی بھی مصطفیٰ کا دین چھوڑ دو ورنہ جان چلی جائے گی، چربی پگھل جائے گی، زندگی کے سانس کے ڈورے ٹوٹ جائیں گے، تیری زندگی کا
समंदर सूख जाएगा। हजरत सुमैया कुफारे मक्का की आंखों में आंखें डालती और फरमाती, ओ कुफारे मक्का सुनो तो जरा, तुम क्या समझते हो ये जुल्म और ज्यादती करके, ये तशद्दुद के पहाड़ तोड़ के तुम सुमैया के सीने के अंदर से ईमान को छीन सकते हो? आप फरमाती, ओ कुफारे मक्का सुनो तो जरा, जितना तुम्हारा जुल्म बढ़ता है उससे कहीं ज्यादा सुमैया के सीने में इश्क बढ़ जाता है। फिर सुमैया का इश्क यही बोलता जिसको डॉक्टर इकबाल ने अपने जुमलों में पिरोया था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गरक़ा भी तो सब कुछ नामुकम्मल, तो सब कुछ नामुकम्मल। मुस्तफ़ा की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल, इसलिए औलादों के सीने में मुस्तफ़ा का इश्क पैदा करें। डॉक्टर इकबाल का नाम सुना, पूछा किसी ने शेरों के अंदर इतनी चाशनी कहां से आई? कहा मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में 100 करोड़ मर्तबा दरूद पाक पढ़ा। पूछे इन उलमा से, अगर किसी को अपनी औलाद को, बस खत्म कर रहा हूं, अगर किसी को अपनी औलाद को आशिक मुस्तफ़ा बनाना है तो मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ना सिखा दे, वो मुस्तफ़ा का आशिक बन जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा करें, अपने माहौलों को दुरुस्त करें, घरों के माहौल पाकीज़ा करें, घरों के माहौल पर्दे वाले करें, नमाजों की पाबंदी करें और गुनाहों से तौबा करें। मेरे और आपके पढ़ने और सुनने में जो भी गलत हो गए हों, अल्लाह पाक अपने फजल से माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।